So compiler design unit 5, let us talk about, this is the third unit, and here we will talk about addresses in target code. This lecture will consist of two parts. This is part 1, and in part 2 we will discuss in the next lecture. So in addresses in target code, so first we have the name in intermediate representation can be converted into addresses in the target code by looking at the code generation for simple procedure call and returns using the static and stack allocation. So each executing program run in its own logical address space that was partitioned into four code and data areas, and a static determined code area which stores the executable code, executable target code, and the size of target code can be determined by the compile time. Second is statically determined the data area, static for holding global constant and other data generated by the compiler. The size of the global constants and compiler data can also be determined by the compile time. And third is the dynamically managed area, that is the heap area for holding the data object that are allocated and freed during the program execution. The size of the heap cannot be determined by the compile time. Fourth is the dynamically managed areas, that is the stack area for holding the activation record, and they are created and destroyed during the procedure call and returns. Like heap, the size of the stack cannot be determined at the compile time. So let us talk about the static allocation. To illustrate the code generation for simplified procedure call and return, we can focus on three address statement. One is the callee. This will call the address, call the function. If we call the function, it must return, and then there must be the halt operation, and there can be some action part. So the size and layout of the activation record are determined by the code generation via information about names stored in the symbol table. First, we will discuss about how to store the return address in the activation record on a procedure call. For convenience, we assume that first location in the activation hold the return address. Now consider the code needed to implement the simplest case static allocation. Here callee, this is the statement callee in the intermediate code, and it can be implemented by the sequence of two target machine instructions. अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए कॉली को st डॉट स्टैक एरिया हैज़ हियर प्लस 20. सो ये क्या कर रहा है कि ये एक तरीके से स्टोर कर रहा है कॉली स्टैटिक एरिया में हियर मतलब करंट एड्रेस प्लस 20 है. तो 20 क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे. BR डेट इज ब्रांच कॉली कोड एरिया जहाँ पर कॉल करें. ST इंस्ट्रक्शन सेव the return address at the beginning of the activation record for the callee, and BR transfer control to the target code for the call procedure, that is callee. The attribute before callee dot static area is a constant that gives the address of the beginning of the activation record of the callee. कॉली का जो बिगिनिंग एड्रेस है एक्टिवेशन रिकॉर्ड का जो होगा, बिगिनिंग ऑफ द एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ द कॉली, वो ये प्रोवाइड करता है. एंड कॉली डॉट कोड डॉट एरिया ये क्या है, ये कांस्टेंट है रेफरिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉल्ड प्रोसीजर कॉली, है ना. जिस एड्रेस को कॉल कर रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट वो जंप कर जाएगा. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें हैश हियर प्लस 20 की, इन द ST instruction it is a literal return address. It is the address in the instruction following the BR instruction. मतलब ये 20 का स्टोर ये एक तरीके से करेगा हमारा जो एड्रेस है वो. We assume that hash here is the address of the current instruction, that the 3 constant plus 2 instruction is calling sequence, और इसकी जो लेंथ है वो है 5 वर्ड्स या फिर बोलेंगे 20 बाइट्स, है ना. एक वर्ड में 4 अगर मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20. सो प्रोसीजर एंड्स विद द रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोसीजर एक्सेप्ट द हॉल्ट प्रोसीजर और नो कॉलर डू इट्स द फाइनल इंस्ट्रक्शन इज हॉल्ट, एंड विच रिटर्न द कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम. और हॉल्ट अगर देते हैं तो डायरेक्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, कॉल करता है, जब में बैक हो जाता है. अब देखिए अगर हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग लिखेंगे BR एस्ट्रिक कॉली स्टैटिक डॉट एरिया. तो एक तरीके से जब हम लोग जंप करते हैं तो वो इस तरीके से इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर देते हैं.
So ये हम एक एग्जांपल के थ्रू वी विल डिस्कस थ्रू वन एग्जांपल हियर. सो हियर वी हैव द एग्जांपल एंड हियर वी हैव दिस प्रोग्राम वी हैव हियर. और यहाँ पर जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम लोग को देखा, दिस इज द स्यूडो इंस्ट्रक्शन एक्शन, और एक्शन पार्ट है वो 20 बाइट्स ले रहा है. ये देखिए यहाँ पर 100 पर दिया गया है एक्शन 1, और 120 मतलब +20 कर रहे हैं, तो यहाँ दे रहा है ST364 हैश 140. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ST364 मतलब 364 वाले लोकेशन पर, ये देखिए ये है हमारा 364 लोकेशन, इस 364 वाले लोकेशन पर हैश 140 मतलब ये वाला 140 पर आना है, तो यहाँ पर ये 140 को स्टोर कर देगा यहाँ पर. So what we are doing, we are just assuming the following: the starting address of the code procedure C is 100. ये जो कोड C है इसका स्टार्टिंग पोजीशन है 100, ये एज्यूम हम लोग कर रहे हैं. स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द कोड फॉर P इज 200. ये कोड P है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 200. और एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर प्रोसीजर C इज स्टैटिकली एलोकेटेड एट 300, है ना. इसका इसका जो एक्टिवेशन जो रिकॉर्ड है वो स्टोर किया गया है इस लोकेशन 300 वाले लोकेशन पर, यहाँ पर स्टोर किया गया है. ओके, नेक्स्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑफ पी इज स्टैटिकली एलोकेटेड एट 364. ये इसका जो एलोकेशन है वो 364 पर एलोकेट यहाँ पर किया गया है. ओके, अब इसको हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करते हैं. ये डायग्राम फिर से हमारा यहाँ पर आ गया. नाउ वी विल डिस्कस ये द इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एट द एड्रेस 100 पर. देखिए इंस्ट्रक्शन क्या है, एक्शन 1 ये पहला एक्शन है, कॉल पी ये है आपका कॉल पी एक्शन 2 और हॉल्ट. कॉल पी में आप ये देखिए ये दो लाइन है कॉल के लिए, ST364 हैश 40 BR200, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है. अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि ST364 हैश 140 का मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ST364 वाले लोकेशन पर मुझे 140 स्टोर करना है, एंड BR200 का मतलब यहाँ से जंप करना है P पर. मतलब है कि फंक्शन C से है, फंक्शन P को हम लोग कॉल कर रहे हैं, और फंक्शन P को जब आप कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन P में एक्शन 3 कंप्लीट होगा, और ये कब रिटर्न हो रहा है, लास्ट में ये हो रहा है BR एस्ट्रिक 364. एस्ट्रिक 364 पर हमने क्या स्टोर किया था, 364 पर हम लोगों ने स्टोर किया था यहाँ पर 140. तो यहाँ पर एस्ट्रिक 364 मतलब 140 पर जाना है. सो ब्रांच टू 140, और 140 मतलब यहाँ आ गए. मतलब ये है कि 120 से लेकर 132 के बीच जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है ये कॉल करेगा इस कोड P को. ये पूरा कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ये वापस फिर से यहाँ पर एक्शन 2 पर आ जाएगा, और ये पूरा रन करेगा, और लास्ट में हॉल्ट लिखा है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट. तो ये एक तरीके से ये हमारा मेन फंक्शन है. इस मेन फंक्शन C है, और C से हम लोग कॉल कर रहे हैं कोड P को, और कोड P यहाँ पर कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद कोड पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोड पी में देखिए क्या हो रहा है, एक्शन 3 एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ क्या लिखा है BR एस्ट्रिक 364. तो एस्ट्रिक यहाँ पर जो लोकेशन होगा वो यहाँ से जंप कर जाएगा यहाँ पर इस तरीके से. सो दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हियर इट इज रिटन. इफ यू read it one by one, you will understand all these things. So ST instruction at address 120 saves the return address 140 and the machine is status field, which is the first word in the activation record of P. BR instruction at the address 132 पर क्या लिखा है, 200 लिखा है. ये क्या है आपका, so this is the first instruction target code of the procedure call P को कॉल करने के लिए यहाँ पर आपको यूज किया जा रहा है, डेट इज द BRP. एक्शन 3 में जब आप आ रहे हैं, एक्शन 3 के बाद क्या है यहाँ पर, द जंप इंस्ट्रक्शन 220 इज एग्जीक्यूटेड. तो अब एक्शन 3 जो भी तो होगा वो आपका रन करेगा, उसके बाद 222 एग्जीक्यूट होगा. 220 में BR एस्ट्रिक, सो हियर इट इज रिटन डेट सिंस द लोकेशन एट 140 वाज सेव्ड एट द एड्रेस 364, द कॉलिंग सीक्वेंस BR एस्ट्रिक 364 will represent 140 and direct it will jump back to the location here, that is the 140 here. So this code is written here, it's very simple to understand. So thank you.